اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ عظیم جنگ بدر کا وقوع ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے شریف میں پیدا ہوئے اور 53 سال کی عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے شریف کی دھرتی پر گزارا۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے اور آپ کے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی کافروں اور ظالموں کے شر اور فساد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں آنے والی تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کا ہنس کر سامنا کیا۔ حالات ایسے بھی ہوئے کہ آپ کو مارنے کی سازشیں کی گئی، قتل کرنا چاہا گیا، اور آپ کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ایمانی قوت عطا فرمائی تھی کہ جہاں پہنچ کر عام انسانوں کے دل دہل جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے اور آپ کے آقا نے ثبات قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ بلکہ کبھی ایسے بھی حالات ہو گئے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے بھی آئے اور عرض کیا، حضور اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، اور یہ جو آپ کی دشمنی میں دم بھر رہے ہیں ان کو لمحوں میں سزا دے کر ختم کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیں، ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، بعثنی اللہ رحمتن، کہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ایک زمانہ آئے اور وہ جو آج ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ جو آج ہمارے قلب کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے درپے ہیں، وہ ہمارے قلب کا ٹکڑا بن جائیں گے، ہمارے جگر کا ٹکڑا بن جائیں گے، اور ہمارے ایک اشارے ابرو پر، ایک اشارے پر اپنی جان دے دینے میں بھی دریغ اور افسوس نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ کر کے حضور پاک اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالات ایسے بھی ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے چچا کے سامنے کفار قریش کا ایک قافلہ چند لوگوں پر مشتمل آتا ہے، اور یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں، آپ کے یہ بھتیجے ہمارے معبودوں کی تکذیب کر رہے ہیں، ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کو منع کر لیں ورنہ ہم کو کچھ نہ کچھ دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جناب ابو طالب نے ہمارے اور آپ کے آقا کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم آپ کی دشمن ہوئی جا رہی ہے، ایسے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے نظریے سے باز آ جائیں، آپ اپنی تھاٹ سے ریٹرن ہو جائیں، تاکہ آپ بھی سکون میں رہیں اور ہم بھی سکون میں رہیں۔ قربان جائیں، ہمارے اور آپ کے آقا نے دعوت و تبلیغ سے ریورس ہونا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا تھا اس کو آپ سنیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، چچا جان، اگر یہ قوم، پوری قوم مل کر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، ان کے اندر طاقت ہو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور سورج کی گرمی سے میں تڑپ تڑپ جاؤں، اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، ان کے اندر اگر سکت ہے اور یہ قوت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ چاند میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں، چاند کی گرمی کی وجہ سے آدمی تڑپ تڑپ جائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ہو جانے کے باوجود بھی سورج بھی میرے ہاتھ میں ہو، چاند بھی میرے ہاتھ میں ہو، اور یہ کہا جائے کہ اس دین کی تبلیغ سے باز آ جائیے، تو چچا آپ بھی سن لیں اور یہ قوم بھی سن لیں کہ اب محمد رسول اللہ ریورس ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنے دین کی تبلیغ میں ہم اپنی آخری سانس لگا دیں گے، لیکن کبھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے جائیں گے۔ جب جناب ابو طالب نے جان لیا کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو
ہم آپ کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے مسلک حقہ میں یہ بات ثابت اور مستقر ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہ لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے، چچا مومن ہو جائیے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا اسلام قبول کر لیجئے، لیکن ان کے نصیبے میں اسلام کی سرفرازی نہیں تھی اور وہ اسلام کی دولت سے سرفراز نہ ہوئے۔ یہ تقریباً علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لے آئے، اور ظاہر ہے جب ایمان نہیں لے آئے تو ایمان نہ لانا یعنی کفر پر ہونا، اور کفر کی سزا جہنم ہے، کفر کی سزا جہنم ہے۔ لیکن میرے آقا کی حدیث ہے، اس کو آپ سنیں اور دیکھیں حضور پاک کا صدقہ کیسے کیسے لوگوں کو مل رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ جناب ابو طالب میرے چچا ایمان نہیں لے آئے تھے لیکن وہ میری مدد کر رہے تھے، اس وجہ سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ مجھ نبی کی مدد کر رہے تھے اس وجہ سے ان کے پیر کا حصہ جہنم میں رہے گا، باقی وہ اوپری حصے میں رہیں گے۔ بہرحال جہنم میں ان کا رہنا یقینی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی حدیث بخاری شریف میں ہے جو اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ کل ہمارے اور آپ کے آقا مکے میں رہے، حالات ایسے بن گئے کہ مکے کے لوگوں نے آپ کے اور آپ کے آوان و انصار ساتھیوں کا، گھر خاندان کے افراد کا جینا دوبھر کر دیا، جینا دوبھر کر دیا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ کوئی آپ کو نہ تو کچھ دے سکتا ہے، آپ کے خاندان کو کچھ دے نہیں سکتا، آپ کے خاندان کے لوگوں سے کچھ لے نہیں سکتا، سلام کلام نہیں، کوئی بھی ان سے معاملہ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ معبودان باطلہ کی تکذیب اور ان کے جھوٹ اور فریب کو آشکار نہ کریں اور ریورس ہو جائیں۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، واٹ ایور اٹ از ہیپنس، واٹ ایور، I am not going to leave. I am not going to leave this message of peace, message of Islam. Anyhow, I will do the business of Islam, inshallah. رسول پاک نے کہا میں یہ کام تو کر کے رہوں گا۔ سوشل بائیکاٹ happened. سوشل بائیکاٹ ہوا اور آپ کو ایک گھاٹی میں رکھا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند آوان و انصار ایک گھاٹی میں رہے۔ گھاٹی میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، پتیاں کھا کے رہنا اور وقت کو کسی طرح سے گزارنا۔ اور جو معاہدہ لکھا گیا اس میں یہ لکھا گیا کہ جب تک یہ معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہے گا تب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ معاہدہ ہو گیا اور اس کی ایک کاپی بنا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ آپ سوچیں وہ خانہ کعبہ جو اللہ رب العزت کا اولین گھر ہے، اسی گھر پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیکاٹ کرنے کی کاپیاں لگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اور آپ کے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی شدت کا مظاہرہ ہوا ہوگا، آپ نے کتنی شدت محسوس کی ہوگی، لیکن یہ دین تھا، دین کی سربلندی کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا نے شدت تو پسند کیا اور شدت کو تو گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے سے باز آ جایا جائے۔ نہیں، میرے اور آپ کے آقا نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا تو کرتے رہے اور آخری دم تک کرتے رہے۔ اللہ اللہ کر کے 3 سال تک شیب ابی طالب گھاٹی میں ہمارے اور آپ کے آقا رہے۔ سوچیں پورا علاقہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی آپ سے کچھ لینے کو تیار ہے، اور آپ کو ایک مخصوص علاقے میں محصور کر کے، بند کر کے، مقید کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ کی زندگی کس قدر دوبھر ہو کر گزر رہی ہوگی، لیکن میرے اور آپ کے آقا ریورس نہیں ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا اور اللہ کے کرم سے 3 سال کا وقت گزر گیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے اللہ رب العزت کی عطا سے جو علم حاصل ہوا تھا اس کی بنیاد پر ایک پیشین گوئی فرمائی اور اپنے صحابہ سے کہا جاؤ کفار قریش سے کہو وہ کاپی اور وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ جو ہمارے اور کافروں کے درمیان میں ہوا تھا، اور یہ بات ہوئی تھی کہ جب تک یہ معاہدے کی کاپی خانہ کعبہ پر رہے گی تب تک ہم ابو طالب کی گھاٹی میں رہیں گے، جاؤ میرے صحابہ بتا دو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کاپی کو دیمک نے کھا کر ختم کر دیا، دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے۔ جہاں پر اللہ یا رسول کا نام لکھا ہوا ہے صرف دیمک نے وہیں نہیں کھایا ہے، باقی پوری کاپی ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ پہنچے اور انہوں نے ساری باتیں کہی۔ جب دیکھا گیا تو واقعتاً
उस कापी में अल्फाज खत्म हो चुके थे और दीमक समझते हैं लकड़ी को खाता है, लकड़ी या पेपर ये इस तरह की चीजें खाते खाते खत्म कर देता है। वाकईतन दीमक ने पूरा पेपर चाट डाला था, जहां पर अल्लाह का नाम था या रसूल पाक का नाम था उसी को महफूज करके रखा गया था। आखिरकार हमारे और आपके आका इस बड़े इम्तिहान की घड़ी से भी निकल आए और फिर दीन मतीन की तबलीग का काम अंजाम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके हालात कुछ अच्छे भी हुए, लेकिन कुफार कुरैश ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि हमको मीटिंग करके कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे माबूदों की, हमारे खुदाओं की बड़ी तजलील होगी और बड़ी तज़हीक होगी। उन्होंने मशवरा किया, आपस में बैठ गए कि क्या किया जाए। कोई कहता है इस इलाके से मोहम्मद और उनके साथियों को भगा दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के ज़माने में शहर बदर कर दिया जाए। तो अगला बंदा कहता है यार अगर यहाँ से किसी और इलाके में शहर बदर करोगे तो वो ऐसे हैं कि जहां भी जाएंगे अपना दीवाना लोगों को बना लेंगे, इस वजह से ये राय कोई राय नहीं है, कुछ और बताओ। किसी ने और कुछ कहा, कहने वाले ने एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो नबी जो पूरी इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए तशरीफ ले आए थे, वही इंसान जो उनकी उम्मत के अफराद थे, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के दर पे हुए। और कहने वाले ने कह दिया, जवाब में लोगों ने कहा कैसे मारोगे, मोहम्मद का खानदान बहुत बड़ा है और अगर कोई एक खानदान मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा तो उनके खानदान के लोग इस खानदान को खत्म कर देंगे। बताने वाले ने बताया नहीं, ऐसा करते हैं कि हर खानदान का एक एक दो दो बंदा लिया जाए और एक एक कबीले से दो दो बंदे लिए जाएं और सब मिलकर एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार चलाएं। जब ऐसा होगा तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले से लड़ सकते हैं, दो कबीले से लड़ सकते हैं, लेकिन जहां जहां 100 कबीले हों और हर कबीले का बंदा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर उनसे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं होगा। इस वजह से ऐसा किया जाए। बताने वाला कोई और नहीं था, ये बात करने वाला इब्लीस था। इब्लीस ने बताया कि ऐसा किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये तमाम के तमाम कुफार जमा हुए और हुजूर पाक के कत्ल की साजिश हुई। रात के वक्त कत्ल किया जाना है। हुजूर पाक ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए महबूब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करें। हमारे और आपके आका मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने के लिए तैयार हो गए और फिर मेरे और आपके आका ने अपने हाथ में रेत के कुछ जर्रात लिए। जर्रात लेने के बाद सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई आयतों को पढ़ते हुए उस पर दम किया, लोगों के ऊपर फेंकते हुए आगे बढ़ गए। किसी ने हुजूर पाक को देखा नहीं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर मक्के की वादियों से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ता भी कोई बहुत आसान नहीं था, लेकिन जान बचाना और ईमान बचाना और इस्लाम की आबियारी करना बहुत जरूरी था। इस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और मक्के से मदीने पहुंच गए। बीच के बहुत सारे वाकयात को मैं कट करके आगे बढ़ रहा हूं ताकि जो हमें बयान करना है जंग बद्र का वाकया उस तक हम पहुंच जाएं और उस पर कुछ गुफ्तगू की जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने पहुंच गए। वो मदीने के लोग जो आपकी राहों में आंखें बिछाए हुए थे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जब पहुंचे हैं तो इतना शानदार इस्तकबाल हुआ है। लोग हुजूर पाक के इर्द गिर्द ऐसे ही मडला रहे थे जैसे शमा परवाने के गिर्द मडला रहा होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक मदीने पहुंचे हैं और मदीने में सहाबा की जमात को आपस में मुत्तहिद किया है और धीरे धीरे करके कुछ लोग मदीना और आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा जो मक्के में थे यके बाद दिगरे मक्के से मदीने तशरीफ ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात कायम की। मुवाखात का मतलब कहा कि तुम और तुम आपस में भाई बन जाओ, तुम और तुम आपस में भाई बन जाओ, तुम और तुम आपस में भाई बन जाओ। इस तरह से मेरे और आपके आका ने सहाबा मुहाजिरीन और अंसार, वो जो हिजरत करके मक्के से आए थे वो और जो मदीने में पहले से मौजूद थे वो, दोनों को मिलाकर कहा तुम आपस में भाई बन जाओ, तुम आपस में भाई बन जाओ, तुम आपस में भाई बन जाओ। इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में सबको भाई बना दिया और ये भाईचारगी ऐसी अजीम मिसाल लगती है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। अब जब भाई बने हैं मुहाजिर अंसार, तो अंसार के पास अगर माल है तो वो माल आधा अपने पास रखते हैं और आधा माल उठाकर अपने उस भाई को दे देते हैं जिसको हुजूर पाक ने उनके लिए भाई मुतय्यन फरमाया है। आज तो हम और आप अपने सगे भाई को अपना माल देने के तैयार नहीं हैं और जब भी मौका मिलता है दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वहां की बात ऐसी थी कि अगर किसी के निकाह में दो दो बीवियां थी तो उन्होंने एक बीवी को तलाक दी और कहा मेरे भाई के निकाह में ये दूसरी बीवी होगी, उसका भी निकाह होना चाहिए।
ऐसी कहीं दुनिया में मिसाल आपको नहीं मिल सकती। हुजूर पाक ने भाई बना दिया तो इस कदर उन्होंने निभाया कि खून के रिश्ते से बढ़कर इस ईमानी रिश्ते को निभाया, और आज भी दुनिया उस तारीख को याद करती है। दूसरा काम जो हमारे और आपके आका ने अंजाम दिया वो मस्जिद का बनाना। मेरे और आपके आका ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर के लिए लोगों को हुक्म दिया और फिर मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई। अब एक सल्तनत, एक ममलकत, एक इख्तिदार, एक कंट्री बसने जा रही थी जिसके सालारे आला और जिसके सदर आला हमारे और आपके आका होने वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल ने ऐसी सल्तनत कायम की कि आपके दीवाने आपके ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश करने में शरफ महसूस करते थे, अपनी जिंदगी की मेराज महसूस करते थे। मदीने में मुसलमान कुछ स्टेबल होने लगे और उनकी हालत बेहतर होने लगी। आखिर ऐसे में मक्के के काफिरों को यह कब भाता कि मदीने में मुसलमान जाकर सुकून से रहने लगे। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। काफिरों ने, जालिमों ने फिर से तैयारी शुरू की और कहा मक्के से निकलकर मदीने में जाकर बड़े आराम से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। और अबू जहल और दूसरे बड़े बड़े सरदारों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम मक्के से चलकर मदीने जाएंगे और मदीने में चढ़ाई करेंगे, मदीने पर हमला करेंगे ताकि इनकी ईंट से ईंट बचा दी जाए। आज हमारा मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ जो बंदा है वो प्रोपेगेंडा करता है, साजिश फैलाने की कोशिश करता है कि इस्लाम तलवार की जोर से या लड़ाई के जोर पर या जिहाद के जोर पर फैला है। जरा उसकी निगाह के सामने ये वाकया भी होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फरिश्तों को हुक्म देते और ये काफिर तहोबाला हो जाते, लेकिन मेरे और आपके आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया रब्बे कदीर के महबूब ने तलवार तक नहीं उठाई, अपनी जान देना गवारा किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जर्रा बराबर हटने को तैयार नहीं हुए। मक्का की वो सरजमीन जिसमें आपने अपना बचपन गुजारा हो, जिसमें आपने अपनी जवानी गुजारी हो और जिसमें आपने 53 साल गुजारा हो, आप सोचें अगर आपके उस घर से, उस इलाके से, उस दर से कोई आपको निकालना चाहे तो आपकी जान पर आ जाएगी और शायद आप किसी भी हाल में उस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन रसूल पाक ईमान की फिजा को हमार करने के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए 53 साल की जिंदगी मक्के में गुजार कर भी मदीने की तरफ चले गए, लेकिन आपने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, तलवार नहीं उठाई, और जब मदीने पहुंच रहे हैं, सुकून की सांस ले रहे हैं, इस्लाम की आबियारी कर रहे हैं, ऐसे माहौल में काफिर आकर हमला करना चाह रहा है। हुजूर हमला करने नहीं गए, काफिर तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर करके मदीना आ रहा है और मदीने में हुजूर पाक और सहाबा के ऊपर शबखून मारना चाह रहा है, हमला करना चाह रहा है। अब बताइए तलवार कौन उठा रहा है? मुसलमान उठा रहा है या उस वक्त का गैर मुस्लिम उठा रहा है? मुसलमान उठा रहा है या उस वक्त का काफिर उठा रहा है? मुसलमान ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन जब काफिरों ने तलवार उठाई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आता है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। वो लोग जिनसे क़िताल करने के लिए लोग आ चुके हैं और उनको मजलूम करना चाहते हैं, उनके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, अब उन्हें भी इजाजत दी जाती है कि वो भी तलवार उठा लें, अपना दिफा करें, अपने मजहब का दिफा करें। और अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर, रब्बे कायनात के हुक्म की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल और सहाबा ने भी तलवार उठा ली। और हुआ क्या, इधर तैयारी हुई, 1000 का लश्कर तैयार किया गया काफिरों की तरफ से ताकि मुसलमानों पर हमला किया जाए और मुसलमानों को हमला करके खत्म कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये वो जमात थी जो इब्तिदाई जमात थी। जाहिर है कोई पार्टी बनती है, पार्टी में जो इब्तिदा के लोग होते हैं दूसरे से भी डर सहम कर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो दूसरा वाला हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करने लगे, ऐसा होता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में बिल्कुल मामला अलग था। यहाँ सहाबे किराम ने कहा, हुजूर जब आपके हो गए तो आप ही के हो गए, अब जान जाती है चली जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे हटकर जिंदगी गुजारे ये गवारा नहीं है, ये गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। इधर कुफ्फार खाने पीने का सामान, मुजरा नाच गाने का सामान और नाचने नचाने का सामान लेकर मक्के से निकले हैं। जगह जगह पड़ाव पड़ रहा है और पड़ाव पर रुक रहे हैं, रंग रैलियां हो रही हैं, शराबो कबाब की महफिलें हो रही हैं, नाच हो रही है और उस पर ये दादे ऐश देते हुए ये सोच कर जा रहे हैं कि चलो मस्ती करते हुए चलेंगे, पीट कर आ जाएंगे, पटक कर आ जाएंगे, मुसलमानों को खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन तकदीर कातिब तकदीर कुछ और ही लिख रहा था और अल्लाह की तरफ से कुछ और ही कहानी लिखी हुई मौजूद थी। इधर लोग धीरे धीरे करके आने लगे। सहाबे किराम को खबर हुई और उन्होंने हुजूर पाक तक ये खबर पहुंचाई, हुजूर वहां से लोग आ रहे हैं। मेरे और आपके आका ने सहाबे किराम के दरमियान मशवरा किया क्या करना चाहिए।
صحابہ کرام نے आपसी मशवरा दिया, हुजूर हमको मदीने में रहकर नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए बल्कि मदीने से बाहर आना चाहिए। صحابہ کرام के मशवरे और हुजूर के इत्तेफाक पर हुजूर ने ये मुहर लगा दी कि हाँ हमको बाहर चलना है। और हुजूर पाक मदीने से निकले और मदीने से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है जिसको बद्र कहा जाता है। बद्र के मकाम पर साहबे किराम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए और पहुंचने की कैफियत ये रही, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचकर सबसे पहले बद्र के इलाके पे जो कुएं थे, जो कुआं था, उस पर आपके सहाबा ने कब्जा कर लिया ताकि संगीन हालात में पानी की किल्लत न होने पाए। ये एक ऐसी जंगी चाल है जिसको आज भी दुश्मन अपनाता है। आप देख लीजिए, वहां तो हुजूर पाक के सहाबा ने पानी पर कब्जा किया ताकि हालात अगर गड़बड़ हो तो पानी हमारे पास रहे। और आज हमारा जालिम और आज का दुश्मन क्या करता है? एयरबेस अपनाता है, एयरबेस को अपने कब्जे में लेता है। आपका पूरा मुल्क कब्जे में नहीं लेगा बल्कि एयरबेस एक इलाके को ले लेगा कि हम अगर फला मुल्क में हमला करना चाहें तो फिर हमारे पास दूर से आने पे बहुत देरी होगी, हमारी मिसाइल, हमारी पेंटागन और हमारी ये हमारी वो दूर से नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से हम फला इलाके को ले लेते हैं। एक मखसूस खित्ता ले लिया, वहां पर जहाज आएंगे, वहां पर जो भी चीजें हैं वो जंगी एतबार से वो आएंगी, वो खित्ता रहे अपने अंदर महफूज किया जाएगा। ये जहन कहां से मिला है? बखुदा मैं कहता हूं ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जंगी स्कीम और जंगी नजरिया है, उसी से लोगों ने ये नजरिया कायम किया है और आज इस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं। बहरहाल हमें उसमें नहीं जाना है, हमें जंगे बद्र की गुफ्तगू करना है। हुजूर पाक पहुंच गए और हुजूर पाक ने पहुंचने से पहले सहाबा के दरमियान एक मशवरा किया, एक मीटिंग की और मीटिंग करते हुए मेरे और आपके आका ने बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ और अपने सहाबा को प्यार और निखार दिखाने के साथ साथ मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सहाबा, सुन लो, ये आ रहे हैं। अगर किसी को जाना है, किसी को लड़ाई में नहीं शामिल होना है, उसको इख्तियार है। हाँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बका की जंग है, इस वजह से जो आए बेहतर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा में से बहुत सारे सहाबा खड़े हुए और उन्होंने जो तकरीर की हुजूर पाक की मोहब्बत में, वो आज भी हमारे ईमान को ताजगी अता करती है, आज भी ईमान को ताजगी अदा करती है। एक सहाबी खड़े होते हैं और खड़े होकर कुछ नर्म लहजे में और कुछ सख्त लहजे में, और वो लहजा भी वक्त के उतार और चढ़ाव के एतबार से था। ऐसा नहीं कि वो गर्मी और वो शिद्दत हुजूर के ऊपर जाहिर की जा रही थी, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कभी कभी सख्ती दिखाकर भी इजहार किया जाता है। सहाबी खड़े हुए और खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपके हो गए तो फिर आपके हो गए। या रसूल अल्लाह, अब जान जाती है चली जाए, लेकिन अब हाथ से दामन मुस्तफा नहीं छूटने दिया जाएगा, नहीं छूटने दिया जाएगा। जान जाती है चली जाए या रसूल अल्लाह, कुछ भी हो जाए, हम अब रिवर्स होने वाले नहीं हैं। दूसरे सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा की तरह नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा और मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने कहा था, हम इनसे लड़ने नहीं जाएंगे, हम आपके मुखालिफिन और आपके दुश्मनों से लड़ने नहीं जाएंगे। फकातला अंत व रब्बुका, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए, तुम जाओ तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम तो अपनी सांस जब तक बाकी रहेगी आपकी राह में, आपके दीन की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब मेरे आका ने महसूस कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सहाबा अपनी जानों का नजराना लेकर हाजिर होने वाले हैं, तो मेरे आका ने भी इरशाद फरमाया, तो फिर चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक मदद आने वाली है और देख लेना रब्बे कायनात हमारी इस जमात को जरूर भी जरूर कामयाबो कामरान फरमाएगा। मेरे और आपके आका निकले, उधर से काफिर आए, मैदाने बद्र में दोनों का कयाम होता है। अल्लाह अकबर। बद्र में एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे हो रहे हैं, गिड़गिड़ाहट की आवाजें आ रही हैं, रोने की और सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। वो नबी जो कभी डरा नहीं, वो नबी जो कभी पीछे हटा नहीं, वो नबी जो अपने लिए बहुत कुछ मांगा नहीं अपने रब से, लेकिन जब बात आई है जंगे बद्र की, जब बात आई है इस्लाम के बका की, जब बात आई है इस्लाम के तहफ्फुज की, तो वो नबी गिड़गिड़ा रहा है, वो नबी रो रहा है, वो नबी सजदे में आकर अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है। और वो जुमले भी बड़े सख्त भी थे, और रब्बे कायनात की बारगाह में जो एक तरीका है मांगने का, जो सलीका है मांगने का, उस अंदाज में मेरे और आपके आका मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। बताया जाता है मेरे और आपके आका रो रहे हैं, रोते रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कदम नाज पर और आपके बदन मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई है रोने की और सिसकियों की बुनियाद पर वो चादर भी खिसकती जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ठपकी दे रहे हैं, हुजूर घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, हुजूर घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के रसूल दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और रब्बे कायनात ने हुजूर पाक की दुआओं को कबूल फरमाया। इधर हुजूर पाक की दुआएं हो रही थी और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन को फरिश्तों के साथ मैदान बज्र में भेजने के लिए तैयार कर रहा था। और मेरे और आपके आका ने चेहरा जब उठाया, हशाशत बशाशत और चेहरे पे जो रौनक थी उससे महसूस हो रहा था कि आज अल्लाह की रहमत आने वाली है, अल्लाह की रहमत आने वाली है। और हुआ भी यही, अल्लाह की रहमत आई। 1000 फरिश्ते आए और फिर 3000 फरिश्ते आए, फिर 5000 फरिश्ते आए। फरिश्तों की तादाद बढ़ती गई। सहाबे किराम कहते थे कि हम जब अपने जालिम काफिर को मारने के लिए दौड़ाते थे तो हमने देखा कि हमारी तलवार उस जालिम के सर के करीब या गले के करीब बाद में पहुंचती थी, उसका गला पहले ही कट जाया करता था, गला पहले ही कट जाया करता था। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आपको मालूम होना चाहिए तुम्हारी तलवार पहुंचने से पहले ही सैयदना जिब्रील अमीन या किसी दूसरे फरिश्ते की तलवार पहुंचती थी और काफिर खाको खून में रौंदता हुआ नजर आता था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान को जब देखा, जंग के मैदान का मुशाहदा किया तो हजरत उमर फारूक को बुलाकर जंग के मैदान में जंग वाक़ होने से पहले ही कहा, आओ उमर तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं। हजरत उमर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं। मेरे और आपके आका ने अपनी छड़ी, अपना असा मुबारक लिया हुआ था और असे से मेरे आका निशान लगाते थे, देखो उमर ये वो जगह है जहां पर फला काफिर गिरेगा और यहां आकर मरेगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर देखो ये वो जगह है जहां पर काफिर गिरेगा और यहां आकर मरेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आओ उमर तुम्हें दिखाता हूं, यहां पर फला काफिर गिरेगा, यहां मरेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमान जाहिर फरमाया, हजरत उमर कहते हैं जंग का मैदान जब खत्म होता है तो इस शौक में कि मेरे आका ने जो फरमाया है चलो जरा उसकी तस्दीक भी करते आओ, हजरत उमर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस जिस के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने की खबरें दी थी और जहां के बारे में बताया था कि वहां मरेगा, हजरत उमर कहते हैं मैंने जाके देखा एक जर्रा बराबर भी वो बंदा ना आगे मरा है ना पीछे मरा है, जहां हुजूर ने फरमाया है वहीं जाकर मरा है। कहने वाला कहता है नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। कहने वाला ये कहता है किसी को क्या पता कि कौन कहां मरेगा, किसी को क्या पता कि कौन क्या कल कमाएगा। कहने वाला कहता है और उस पर कुरान से दलीलें ले आता है और ये सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जरा इन अहादीस तय्यबा में तो गौर करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उस हदीस या कुरान की आयत या नस का मतलब क्या है। जब तुम इस तरह से कुरान और हदीस पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मर्तबा हमारे और आपके रब ने अता फरमाया है। अला कुल्ली जंग हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में, आप सोचें चंद तलवारें हैं, चंद तलवारें हैं, 313 लोग हैं और तकरीबन 70 ऊंट गालिबन और कुछ घोड़े हैं। सबके पास ऊंट भी नहीं है, सबके पास घोड़े भी नहीं है और उस तरफ एक नहीं दो दो ऊंट है, एक नहीं दो दो घोड़ा है। तलवारें चमकती दमकती हैं और जहर में भुजाई हुई तलवारें हैं कि आज ये तलवार जिसके ऊपर पड़ेगी उसका काम तमाम कर देगी। इधर अल्लाह के रसूल के मतवालों के पास किसी के पास तलवार है भी, किसी के पास नहीं भी है और अगर है भी तो टूटी फूटी तलवार है। अल्लाह अकबर। लेकिन इस जमात को अपनी अपनी जात पर भरोसा नहीं बल्कि रब्बे कायनात की जात पर भरोसा था। रब की जात पर इतना यकीन था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से इस कदर ईमान में ताजगी और रौनक थी कि वो पहाड़ों से टकरा जाने में भी बिल्कुल भी जर्रा बराबर कोई तअम्मुल महसूस नहीं कर रहे थे। पहाड़ों से टकरा जाएंगे लेकिन हुजूर पाक के साथ चलेंगे। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में मिलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे पास तो तलवार नहीं है, क्या करूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जाओ कोई लाठी डंडा कुछ भी तो हो तो ले आओ। वो सहाबी गए और उन्होंने खजूर का एक तना पाया, खजूर का एक डंडा पाया, लेके आए हुजूर पाक के पास, हुजूर यही डंडा मिला है। मेरे आका ने उस डंडे पर अपना हाथ फेर दिया। अभी कुछ देर पहले तक वो डंडा डंडा था लेकिन जब रसूल पाक का हाथ फिर गया तो अब चमकती दमकती तलवार की सूरत में वो नजर आने लगा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की सरबलंदी होती रही। रब्बे कायनात की बारगाह में रब के महबूब रोकर गिड़गिड़ाए दुआएं करते रहे और रब्बे कायनात ने फतेह मुबीन अता फरमाई। वो जालिम, वो जाबिर जो तमाम कबीले कुरैश का सरदार बना बैठा था, अबू जहल मैदान में आया था, सोचा था पटक कर जाएंगे।
ابو جہل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل فلاں ہے، فلاں جگہ ہے، جلدی سے جاؤ، فلاں جگہ ہے۔ یہ دونوں تلوار لیے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہیں، جس طرف ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میدان جنگ ہے، کہیں ایک تلوار پڑے گی تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اب یہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ابو جہل جیسے کافر کو ہم ہی دونوں ماریں گے۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ابو جہل کو ہم دونوں مل کر ماریں گے، کسی اور کو مارنے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ چلتے رہے اور ایک مقام پر جیسے ہی ان کو موقع مل گیا ابو جہل کو گرا کر پٹک دیا۔ لیکن ظاہر ہے ابو جہل بھی تو کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں، کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر تلوار جو ماری تو ایک بچے کے ہاتھ پر تلوار پڑی اور ہاتھ کٹ کر جھولنے لگا۔ دوسرے بھائی نے پھر سے پٹکا تو پھر پٹک کر دونوں نے مل کر اس ظالم کا کام تمام بھی کر دیا۔ دونوں نے مل کر کام تمام کر دیا، لیکن اب یہ جو ہاتھ لٹک رہا تھا اس کا کیا کرنا؟ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ مجھے تکلیف دے رہا ہے کیونکہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں۔ اپنے اس ہاتھ کو پیر سے دبایا، کھینچ دیا تاکہ یہ ہاتھ نکل جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ یار، جہاں شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال جنگ ختم ہوئی اور اس طرح سے تقریباً 70 کافروں کو واصل جہنم کیا گیا اور تقریباً 14 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کا مرتبہ اللہ رب العزت نے اتنا بلند فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات آتی تھی تو اپنے بند کر کے پھر اسٹارٹ کروں۔